سلام ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے کا کون صاحب بول رہے ہیں؟ ارے ہم سلطان پور سے بول رہے ہیں. سلطانپور پٹی. سلطانپور. کون سا؟ اچھا یہ اجمل سلطانپوری والا. ہاں ہاں، اس کے بغل امیٹھی ہے. ہاں اجمل سلطانپوری صاحب رحمت اللہ علیہ. ہاں، فرماؤ صاحب تو کیا یہ حکم ہے؟ حکم کچھ نہیں، ہم تو پینٹ شرٹ پہننے والے آدمی ہیں کوئی بات نہیں اور ہم مولانا تو ہے نہیں بھائی. تو کیا ہوا؟ لیکن جو آپ کی ویڈیو اس وقت بہت چل رہی ہے کون سی؟ کہ کربلا میں کون تھے. ہاں وہ یہ تو آپ میں نے کب کہا کربلا میں کون؟ نہیں، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں کربلا میں بریلوی حضرت تھے. امام حسین علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ حضرت علی اکبر تھے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا خدمت کے لیے مقرر تھیں. ارے کربلا میں حضرت امام حسین تھے، حضرت قاسم تھے. ارے وہ ایک پیر رہے گا، پیر ہے، اس نے ایسا بول دیا تھا پیر نے کہ کربلا میں بریلوی تھے. معصوم علی اصغر تھے. وہ کربلا علی ایک پیر ہے علی گا، اکبر وہ تھے. مسولی کے وہ بارہ بنکی کے پاس کے پیر صاحب ہیں. تو آپ پیر بول رہے ہیں. انہوں نے بول دیا تھا کہ کربلا میں بریلوی تھے. آپ نے بولا ہے. نہیں، انہوں نے پیر صاحب. تو آپ بھی پیر ہیں. تو پیر صاحب نے مرید بڑھانے کے لیے بولا تھا کہ لوگ میرے مرید زیادہ ہو جائیں گے اعلی حضرت کی وجہ سے. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے ان پیر صاحب کو. اچھا، تو کربلا یعنی میں ان یہ پیر صاحب کے بتائیے. حساب سے پورے عرب میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، وہاں کے سید بھی مسلمان نہیں ہے اور جتنے صحابہ کرام کی اولاد ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہے. جو مسئلے کے عرب کو نہیں مانتا ان کے ساتھ مسلمان نہیں ہے. اچھا، وہاں سید اصلی وہاں بھی تو ہے، کوئی مسولی میں بلگرام میں تھوڑی آ گئے. امام مہدی علیہ السلام وہیں تو ظاہر ہوں گے. وہ خاندان ہاں آج بھی ظاہر تو. موجود ہے، جس خاندان میں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے آج موجود ہے، عرب میں موجود ہے خاندان. ہاں. ان اچھا، کو تو جا کے آپ نے منوائے، نہیں، مسئلہ کی حالت کے نعرے منوا، جب ہم مانیں گے ان کو بہت بڑے پیر ہیں. تو یہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ یہ نیا مسلک ہے، اس کا امام بھی نیا ہے، اس کا مونوگرام بھی بن گیا ہے رضوی. جیسے شافعی مالکی حنبلی حنفی ہے، ایسے اس کا اچھا، مونوگرام رضوی ہو چکا ہے. ایک اس کا چیز فقہ ہماری بھی سن بن لیجیے. چکا ہے، فقہ فتاوی رضویہ ہے اس کا فقہ. 2 منٹ ہماری سن لیجیے. اگر غوث اعظم نے نہیں کہا کہ مسلک غوث لگاؤ، ہے؟ غوث اعظم نے نہیں کہا کبھی اپنے مریدوں سے کہ مسلک غوث لگاؤ، ہاں ہاں، کہا کبھی؟ کبھی نہیں کہا، خواجہ معین الدین نے کہا، کبھی نہیں کہا، مخدوم صابر کلیری نے کہا، کبھی نہیں کہا، حضرت سیدنا مسعود غازی بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کبھی نہیں کہا، سیدنا بدیع الدین قطب المدار نے کہا. کبھی نہیں کہا. تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب کسی بڑے بڑے جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے اپنے مسلک کا نعرہ نہیں لگوایا تو آپ لوگ کیوں فالتو ایسا کرتے ہیں؟ کیوں مسئلہ کے حالت کے نعرے لگوا رہا ہے؟ صحیح بات ہے آپ، صحیح کہا آپ نے بالکل. کیا یہ بلا وجہ نعرے لگوا رہے ہیں گلزار میں مسئلہ کے حالات؟ بہت اچھی دلیل دی آپ نے، بہت زبردست دلیل دی، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی دلیلیں دینا چاہیے، صحیح بات ہے. اور رہ گئی بات، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جو یہ فساد پھیلا رہے ہیں کربلا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسین و منی و انا من الحسین. ہاں، حسین مجھ سے، میں حسین سے. تو یہ بتاؤ، اگر امام حسین کو یا معاذ اللہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بریلوی ہیں تو کون کون بریلوی ہو جائے گا پتہ ہے؟ نہیں یہ بتا، میں نے کہا کہ وہ پیر صاحب نے کہا مسولی کے، مجھے کیوں ٹارگٹ بنا رہا ہوں؟ وہ مسولی کے پیر صاحب نے تو اپنے خاندان کو پیچھے چھوڑ کر بریلی والوں کو آگے بڑھا دیا کہ مرید زیادہ ہو جائے میرے، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں. بھائی ہم نے تو سنا کہ ارے کوئی کل ملا تو وہ اطہر ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بریلین نہیں کہتے، ان کی ماں بہنیں جو ان کے گھر کی عورتیں ہیں نا، یہ تبلیغ نہ کرنے نکل جائیں رضویت کی کہ عورتوں میں لڑائی جھگڑے کرا دیں گے. کربلا میں بریلین عورتیں بریلین تھیں تو عورتیں لڑ پڑیں گی. بھائی کیا ہوتا ہے بریلین؟ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بریلین تھیں اور حضرت علی وہ سغرا رضی اللہ عنہا بریلین تھی، تو آپس میں چوٹی پکڑا ہو جائے گی، پٹکا پٹکی ہو جائے گی.
पुलिस थाने में रिपोर्ट जाएगी तो कहेंगे कि हमें बरेलियन कहलवा रही थी, करवा वालों को बरेलियन कह रही थी, बरेलियन है औरतें। एक चीज औरतों और में भी सुनिए तबलीग हमारी, करवा सकते हैं गुलजार में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इनको ये औरतों में ही भेज सकते हैं अपनी माँ बहनों को कि जाओ तुम भी औरतों में कट्टर सुन्नी बनाओ, कट्टर बरेली बनाओ इन औरतों। एक चीज हमारी और सुनिए, इरशाद फरमाइए। जैसे कहीं न कहीं इमाम आजम अबू हनीफा या जो भी मसलक देवबंदी हो या बरेलवी हो, तो हम तो ये बरेलवी देवबंदी के चक्कर में पड़ते नहीं। हाँ हाँ, क्या बात है, आप फिर हमारी तरह ही, हम भी अहले सुन्नत, हम भी नहीं पढ़ते हैं चक्कर में देवबंद बरेली। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं मुल्ला अतहर साहब कि आपने अगर ये बताया कि करबला में बरेलवी थे तो यजीद तो सुन्नी था। तो ये क्या बात, आप भी माशाल्लाह फलसफा वो कर रहा है, फलसफे का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर उन्होंने कहा मसौली वालों ने कि करबला में बरेलवी थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में था कौन? इमाम हुसैन तो हुसैन ही थे, उनके साथ वाले, ये बरेलवी कौन थे? भाई जैसे वो उन्होंने एक हिसाब से उनके हिसाब से सही कहा है कि करबला में जो थे। आप लोगों के मसलक में देवबंदियों इमाम के हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों को तो बरेलवी कहा नहीं जाएगा। क्या बात है। देवबंदियों के मसलक में तो ये लिखा हुआ है कि यदि सुन्नी था। अच्छा, ये तो मैं नहीं पढ़ा कहीं देवबंदियों के मसलक में हो। नहीं, अगर ये नहीं लिखा तो यजीद को काफिर कहने के लिए नहीं, ये रशीद गंगोई ने और रशीद अहमद गंगोई साहब ने और उन्होंने भी ये माना है कि फासिक था, उसको रहमतुल्लाह अलैह भी नहीं लिखा देवबंद वालों ने। ये जो है ना अहले हदीस जो है ना, मरदूद अहले हदीस, ये लोग मानते हैं उसको, मोमिन मानते हैं। अहले हदीस में देवबंदी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, मैं वजू खाने में बैठा हूँ जामे मस्जिद मुरादाबाद के अंदर, मेरे नमाज पढ़ी देवबंद वालों के कब्जे में, मुफ्ती फैज साहब ने नमाज पढ़ाई, मैं भी मुसाफा करके आऊँ, वालिद साहब भी मौजूद, तो उन्होंने अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ दरूद इब्राहिमी मुकम्मल पूरा पढ़ा दुआ से पहले, और बाद में भी हुजूर के सबके तुफैल में कह के दुआ मांगी खत्म के वक्त। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, हजारों लोग गवाह हैं अभी जामे मस्जिद में। और यहाँ के देवबंदियों में और भोपाल के देवबंदियों में भी जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ के देवबंदी अलग है भोपाल के, वो तो 2 रकत पढ़ के ऐसे भागते जैसे गधे भागते हैं ना, ऐसे भागते हैं 2 रकत पढ़ के भोपाल के हमारे। और यहाँ मैंने देखा पूरे सुन्नतें पढ़ के गए, पूरी मस्जिद भरी हुई थी, कभी थोड़े ही बहुत लोग निकले थे लेकिन सुन्नतें पढ़ के गए। हम देवबंदी भोपाल में सुन्नतें नहीं पढ़ते आमतौर से, आप वहाँ की मस्जिद में देखा 2 रकत के बाद खाली हो जाती है। और ये मुरादाबाद की जामा मस्जिद में कभी आप पढ़ना तो पूरी नमाज पढ़ के जाते हैं ज्यादातर 98-95%। मैं अभी यहीं पर मौजूद हूँ मस्जिद में ही। हमारी बात तो सुनिए, एक बात सुन लीजिए। ये बताइए कि जैसे आप हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक, आप हैं मुल्ला अतहर कादरी। अतहर हुसैन भी लगता है मेरा नाम, क्या है? चलिए, अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ मैं, हुसैन लगता है हमारे यहाँ। मुल्ला अतहर हुसैन कादरी। हुसैन जरूरी। अगर आपको आलिम मान लिया जाए, मुजद्दिद मान लिया जाए, पीर मान लिया जाए, या आपको कुछ भी मान लिया जाए, हम आपको देखे नहीं हैं, लेकिन आपके जितने बच्चे पैदा होंगे उसी पे मसनद नसीब रहेंगे। हाँ, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही करना है भाई। आपका बच्चा पैदा हुआ, वली हो गया, उसकी एक मजार बना दिया, फिर उसका बच्चा पैदा हुआ, वो ये मज़ारे भी बहुत बन रहे हैं अभी तो। गुलजार मियाँ का बहुत बड़ा मज़ार बनना है इनका। अरे गुलजार मियाँ का छोड़ो, हम मौलानाओं की बात कर रहे हैं। जैसे अशरफ अली थानवी के जितने लड़के होंगे सब मसनद नसीब हो जाएंगे और सबकी मज़ारें बनती चली जाएंगी। या आपके बरेलवी मसलक में जो है मज़ारे बनने का रिवाज नहीं है, तो फिर ये मज़ारे कहाँ से, कैसे, ये इस्लाम में ये कैसा मामला है? सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा हो, बिल्कुल हुक्म नहीं है जो आप कह रहा, हुक्म नहीं है। हिंदुस्तान में चंद हस्तियों के मज़ारात थे जिन्होंने दीन का काम किया, जैसे हज़रत शेख चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। थोड़ा सुन लीजिए। अब ये आजकल के पीरों ने क्या काम किया, टखनों से नीचे पजामा पहनते हैं, औरतों से पैर हाथ दबाते हैं, और इनके लोग मज़ार बना के खड़े कर देते हैं। लोग जाके मुरादें मांगते हैं, बेवकूफ लोग जाके। अरे क्या मुरादें पूरी करेंगे जो खुद ही ऐसे मर गए कि जिनके पजामे टखनों से नीचे होते थे, नमाजों की पाबंदी नहीं थी, औरतों से पैर दबाते थे, हराम रोटियां खाते थे, क्या ये मुरादें पूरी करेंगे? मसलों पे बात मत कीजिए, हम जो कह रहे हैं आप सुन लीजिए थोड़ा सा। वो से पाके एक वालिद का एक वाक़या सुन लें।
ان کے والد نے ایک ہاں، سیب کھایا تھا, کتنا بڑا سفر کیا. وہ لوگ تھے پرہیزگار. سیدنا میر ابو صالح اس جنگی دوست ہم سب پڑھ چکے ہیں. وہ بتاؤ ایک سیب کی خاطر کتنا بڑا سفر کیا. اور یہ آج کل کے بھی تو کہیں بھی کھا لیتے ہیں, سود بیاج والے کے کھا لیتے ہیں, کہیں بھی کھا لیتے ہیں. بھائی ایک چیز آپ بتاؤ ہم کو, جیسے آپ مولانا ہیں, آپ مولانا اطہر حسین صاحب قادری بریلوی. بریلوی کیوں کہہ رہا ہوں میں نہ بریلوی ہوں نہ دیوبندی ہوں. اگر کہنا ہی ہے تو اجمیری سنی کہہ سکتے ہیں. اجمیری بھی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کہنا ہے تو اجمیری سنی کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ میں حضرت خواجہ غنی نواز کا جنات ہوں. تو اگر آپ خواجہ غریب نواز کے جنات ہیں تو آپ کشف المحجوب پڑھیے. ارے واہ کیا بات کہہ دی حضرت داتا صاحب. آپ مررت اسرار پڑھیے. ہاں ہاں کیا بات. آپ عوارف المعارف پڑھیے. حضرت شیخ شہاب الدین صاحب کی. صحیح بات. شیخ شہاب الدین سہروردی. ارے بہت غلط. آپ کرامات مسعودیہ پڑھیے. ہاں ہاں کیا بات ہے. آپ تذکرہ تاجدار بہرائچ پڑھیے. ہاں ہاں کیا بات ہے, بہت شاندار. آپ لطائف اشرفی پڑھیے. ارے واہ مخدوم اشرف صاحب. آپ شراب معرفت کلیری یعنی صابر پاک کلیر کی کتاب پڑھیے. کیا بات. آپ گلزار وارث پڑھیے. ہاں کیا بات. حضرت سیدنا حاجی وارث صاحب کے بارے میں ایک کتاب پڑھی تھی میں نے, الصحیح الحارث فی رعاین الوارث. آپ سیدنا اسماعیل مصولوی کی کتاب پڑھیے. وہ جن کے بیٹے یہ اودھم مچائے پڑے ہیں کہ کربلا میں بریلوی تھے اور حضرت علی کے جبے پر مجھے آپ عبد الرزاق صاحب باسری کی کتاب پڑھیے. کنتور سنے ہیں؟ کنتور. ارے عبد الرزاق صاحب کی میں حاضری دوں گا. 62 شریف ابھی حاضری دی نہیں ہے, میں لکھنؤ جاؤں گا نا, اب کہتے حاضری دینا. نہیں تو بغل میں کنتور ہے, کنتور شریف جانتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں گیا میں. وہاں دیور شریف تو میں گیا ہوں, اور مخدوم صاحب وہ بہار بھی وہاں بھی گیا ہوں, بہرائچ. تو وہاں نہیں گئے تو پھر کہیں نہیں گئے. کہاں پر؟ کنتور. کنتور آپ وہاں جائیے, دیکھیے کتنے اکابر خلفاء وہاں آرام کتنی دور ہے یہ 62 شریف سے؟ کتنی دور ہے 62 شریف سے؟ ہوگا لگ بھگ 20 کلومیٹر. چلو میں انشاءاللہ آپ کیسے جائیں گے کنتور. تو یہ بتائیے حضرت, ان کتابوں کو آپ پڑھیے. اور پہلی چیز میں نے پڑھی ہے آپ لوگ سہروردی کی ساری کتاب میرے پاس تھی, عوارف المعارف اور ایک مخدوم بہار کی تو آپ نے بتائی نہیں, مکتوبات صدی اور 2 صدی, بہت لاجواب کتاب ہے دونوں. کہاں تک گنائیں؟ سبا سنابل شریف ہے, بہت کتابیں, لیکن کہاں تک ان کو گنائیں؟ سید بن عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدوں کو تو اور زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, انہیں بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اولاد رسول ہیں, ان کو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے لکھا ہے سید بن عبد الواحد, انہوں نے تو ایک حدیث بھی لکھی ہے اس بارے میں. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, وانذر عشیرتک الاقربین, آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. ایک چیز اور آپ ہماری سن لیجیے. جیسے آپ مولانا ہیں, مولانا اطہر حسین صاحب بریلوی. بریلوی مت کہا کرو آپ, نہ مجھے دیوبندی کہو نہ نقشبندی کہو, نہ مجھے دیوبندی کہو نہ نقشبندی. میں دیوبند والوں کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ ان چاروں اکابروں کی جو کتابوں میں غلطیاں نہیں مانتے. ہوگی غلطی کرتے. یہ بتاؤ, قرآن نے جو چیزیں بتائی ہیں یا راہ تصوف میں جن بزرگوں نے, جو بڑے بڑے اکابر ہیں, انہوں نے جو ولی کی پہچان بتائی ہے, اس کو دیکھ کر کے ولی پہچانا جائے گا, ولی مانا جائے گا کہ خوب اچھی اچھی کریم لگا کے کرتا پاجامہ پہن لو. کیا بات کہہ دی. آج کل کے تو کرامتیں بنائی جا رہی ہیں ریڈی میڈ طریقے سے. ادھر ادھر مرغے کاٹو. الیاس قاضی کی معلوم ہے 2 لاکھ کرامتیں بنا دی دعوت اسلامی والوں نے کم میں, الیاس قاضی کی مکہ کی. اور وہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے, میں بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام شان میں کھلی گستاخی کی. غوث پاک کے بارے میں کہا کہ وہ بھی نہیں تھے مجدد, میں بھی نہیں ہوں. اپنے آپ کو ان سے جوڑا. اور بریلوی حلم کر رہا ہے کہ زکاتیں کھلا رہا, انہیں صدقے کھلا رہا, خوب جم کے زکاتیں صدقے کھلا رہا ہے. اور کہا بھی رہا بریلوی, ایک چیز بریلوی اللہ کے رسول شان میں گستاخی اس نے کی, وہ حلم کر رہے ہیں. حالات کی شان میں گستاخی حلم نہیں کرتا بریلوی, اتنا کٹر ہوتا بریلوی. ہماری بات سنیے آپ. ہاں, اگر بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, یا کچھ بھی ہیں آپ, تو حضور جو امام اعظم ابو حنیفہ تھے, جنہوں نے علم حضرت امام جعفر صادق کے یہاں حاصل کیا, انہوں نے یہ کہا کہ جب میرا قول پھوڑنے لائق ہو جائے تو اجماع صحابہ پر غور کر لینا.
हाँ 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 हाँ, इजमा साहबा। तो इजमाए सहाबा पर आप क्यों नहीं गौर करते? आप मसल के अशरफ अली थानवी और मसल के ख्वाजा, मसल के गौस, कितने मतलब आपने बनाना बहुत चाहते अच्छी बात कही कि पहले कुरान फिर हदीस पाक। कुरान में अल्लाह ने फरमाया भी फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर तुम्हारे किसी मामले में तनाज़ा हो तो पहले कुरान देखो, फिर हदीस पाक में उस मसले का हल देखो, फिर बाद में है इजमाए साहबा, बाद में। पहले कुरान है और हदीस पाक। अगर कुरान हदीस में आपको न मिल सके, यानी इतना इल्म ना हो, वैसे तो हर चीज बयान की गई है, अल्लाह ने कुरान हर चीज बयान कर दी। अल्लाह ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैका किताब तिबयाना लिकुल्लि शै, हमने कुरान नाज़िल किया, इसमें हर चीज का बयान है। अगर आपके पास इतना इल्म नहीं है तो फिर आप सहाबा किराम का इजमा में भी चीज देखो, फिर कयास है, समझ गए। लेकिन फतावा रज़िया में कहीं भी नहीं लिखा कि फतावा रज़िया देखो, फतावा ये देखो, बाहर शरीयत देखो। वो एक किताब बाहर शरीयत आलिम बनाने वाली किताब है, तो फिर बाहर शरीयत से पहले जितने थे वो आलिम ही नहीं थे। खुद बाहर शरीयत वाले फिर क्या हुए? इन्होंने बाहर शरीयत लिखी है, ये खुद क्या हुए? फिर ये कैसे आलिम बन गए इतने बड़े? एक चीज हजरत सुन लीजिए, आप लोगों ने ही तमाम शरीयत की बात आप कर रहे हैं ना? नहीं, ये बताओ, जामे अगर मिस्र के लोगों को हम मानते हैं, वहाँ पर ये सब बरेली पढ़ते हैं, देवबंदी पढ़ते हैं, और ये सुलह कुल्ली बन के पढ़ते हैं वहाँ पर। देवबंदियों में देवबंदी बन जाते हैं जामे अगर में, जितने भी ये पढ़ने जाते हैं। ये रामपुर से गया था, एक बरेली से गया था, और भी जने कहाँ से जाते हैं, वहाँ पर जाके सुलह कुल्लियों का खाते हैं, उन्हीं का ज़बिया खाते हैं, उसके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। यहाँ के कट्टा बन जाते हैं कि हुजूर ने फरमाया इनके साथ खाओ मत, इनके साथ बैठो मत। यहाँ के हदीस पढ़ते हैं, ला तो आकिलूं ला तो जालिसूं ला तो शारिबूं ला तो आनिकुं। वहाँ मुजालिसत, मुआकिलत, मुशारबत, मुआनकत सब करते हैं जामे घर में। ये लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप क्या मानते हैं? अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल का मर्तबा है बस। जब आप जंगे बदर में जा रहे थे और उसमें एक मुनाफिक था, अब्दुल्ला मुनाफिक, वो रास्ते से लौट आया था, उसने कहा कि तुम्हारे पास टूटी तलवारें हैं, ये हैं वो हैं, और हम नहीं जाएंगे। तो उसका लड़का गया और उसके बाद जंगे बदर फतेह हो गई, तो उसके लड़के ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम अपने बाप का सर कलम कर देंगे। समझ रहे हैं आप? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा है कि जब तक वो कलमा पढ़ता रहे, क्या कलमा पढ़ता रहे, आप उसका सर कलम ना करो। तो कौन मुसलमान है कौन नहीं, कौन मुनाफिक है कौन नहीं, मुनाफिक को पहचानने के लिए हजरत अली की जरूरत है। क्या बात है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात की आपने। नहीं, गुलजार मियां भी पहचान लेंगे। ये तो यहीं से पूरे अरब वालों को मुसलमान नहीं मानते, यहीं से देख लेते हैं। ये कालपी वाला भी सब देख लेता है कि पूरे अरब में कोई भी मुसलमान नहीं है, एक भी इमाम मुसलमान नहीं है कालपी वाले के नजदीक। जो कालपी का पीर है ना, वो पूरे अरब में एक कोई मुसलमान नहीं मानेगा कि किसी का भी निकाह नहीं हुआ, सब बेनिकाही औलादे यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ अल्लाह के मसलक के लोग नहीं है। तो ये यहीं से देख लेता है, कालपी वाला है, और ये मसोली वाले हैं, और भी लोग हैं इनके अंदर बहुत सारे। पीर कहते किसे हैं पहले सुनिए। पीर एक होता है कि समझ लीजिए कि खिलाफत कुबरा, खिलाफत सुगरा। अरे विलायत कुबरा, विलायत सुगरा, वो आपने जो बात की, खिलाफत तकवीनी, विलायत तकवीनी होती है, और बहुत सारे मामला है इसमें। विलायत के अंदर 27 दर्जात हैं। तो हम पढ़े हैं कि आदमी मोमिन सारे कौन होता है। दर्जात पर हजरत शेख हाजी सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और सैयद हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये सब उन सब दर्जात पर फायद थे, और उन सबको मालूमात थी। वो सारे दर्जात जो विलायत के अंदर दर्जात हैं, सबको मालूमात थी। मुसलमान कौन, मोमिन कौन, कुतुब यमीनी कौन, सारी कौन, मोवक्किल जलाली कौन, मोवक्किल जमाली कौन, तमाम। गुलाम रसूल बलियावी है, वो इतना पावरफुल मोमिन है कि अगर वो फूंक मार दे तो पूरा बिहार हवा में न उड़ जाए, इतना बड़ा मोमिन है वो भी मसले के हालात को ऐसा मानता है कि उसके अलावा कोई मुसलमान ही नहीं मानता। जो मसले के हालात का नाम न ले तो वो बलियावी कह देगा ये भी मुसलमान नहीं है। अरब वालों को वो भी मुसलमान नहीं माने, कह देगा वहाँ भी सब मुसलमान नहीं, काफिर है। वहाँ के सैयदों को मुसलमान नहीं मानेगा, गुलाम रसूल बलियावी कह देगा नहीं वो मसले के हालात को नहीं मानते, मुसलमान नहीं। वो तो 100 साल से मान रहे हैं कि नमाजी नहीं हो रही अरब में, ये बरेलवी तो मान रहे हैं नमाजी नहीं हो रही, सब बेनिकाही औलादें पैदा हो रही हैं वहाँ पर, क्योंकि रज़ी गवाह नहीं बनेगा तो निकाह नहीं होगा। हाँ, अगर निकाह तो ये लिखा है उन्होंने कि गैर मुस्लिम पढ़ा दे हो जाएगा, लेकिन अगर गवाह अगर मुसलमान नहीं बनेगा तो निकाह नहीं होगा। तो अरब में कौन से गवाह बनते हैं? रज़ी एक भी गवाह नहीं होता वहाँ। अगर आपकी बातें सुन के बड़ी गहराई लग रही है कि आप तसव्वुफ के अंदर डूबे हुए आदमी हैं, और मुतसव्विफ भी हैं, और आप मुहक्किक भी हैं, और मुदक्किक भी हैं, और आप वसीम नजर शख्सियत लग रहा है मेरे से।
लेकिन आपको तो ऐसा लग रहा है आप कोई बसीर नजर शख्सियत है, कोई मामूली शख्सियत नहीं है आप, कोई बहुत जबरदस्त मुतसव्विफ भी हैं और आप आरिफ भी हैं। और तसव्वुफ की तो वो हम में नहीं आ सकती, अल्लाह से तौबा करते हैं। लेकिन आप वाबस्ता है तसव्वुफ से, हमने मुतसव्विफ तो है, मुतसव्विफीन में आपका शुमार होगा, ऐसी बात नहीं। हमने तो इस्लाम के लिए कहा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम। हाँ, मुंतशिर हो तो फिर शोर मचाते क्यों? मैं कहता हूँ 30 करोड़ की आबादी मत बताओ, फिर तुम बरेलियों को मुसलमान मानते हो तो 30 करोड़ मत बताओ, नहीं तो तुम खुद ही फिर इस्लाम से खारिज हो जाओगे। अगर ये बताओ 26 पार्लियामेंट में मुसलमान है तब भी इस्लाम से खारिज हो जाओगे। अगर ये बताओ कि शामी क्रिकेटर मुसलमान है, सिराज मुसलमान है, जब भी इस्लाम से खारिज हो जाओगे। अगर ये कहोगे राहत इंदौरी मुसलमान है, मुनव्वर राना मुसलमान है और मंदिर भोपाली मुसलमान है, तब भी इस्लाम से खारिज जाएंगे। पहले सब इन सब के मजहब चेक करो, फिर बताओगे ये मुसलमान है, ये काफिर है, ये बरेली है। मैं तो इनको ऐसा लताड़ता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो कुरान का हाफिज होगा वो मुसलमान है। बेईमान गाली दे देगा शिया, यहूदी, कादियानी, ये कि इनको कुरान याद ही नहीं हो सकता। और मैंने ये भी बताया हशमत अली साहब के खानदान में आज भी कोई 10 पारे का हाफिज नहीं है, और मसौली वालों को 5 पारे भी याद नहीं है। अमीनुल काजी अगर 5 पारे सुना दे 500 गलतियों के साथ तो 2 लाख रुपए इनाम दूंगा मैं, 2 लाख। मसौली वाले 5 पारे सुना दे 500 गलतियों के साथ तो 2 लाख दूंगा। ऐसे लोगों को कुरान भी याद नहीं होता, ऐसे कि जो लोग ज्यादा बकवास करते हैं इनको अल्लाह ताला कुरान याद करने की शहादत भी नसीब नहीं फरमाता है। हाँ, देवबंदियों में हम भी मानते गलती है, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं है कि जैसे ये कर रहा है, नहीं तो कुरान क्यों याद हो जाता? कुरान ऐसी 5 गलती करने वालों को कुरान याद नहीं होता। ये मेरा तजर्बा है। अगर मेरा तजर्बा सही है क्या? मेरा तजर्बा सही है? नहीं सही है आपका तजुर्बा, लेकिन ये बताइए कि हम किसी मौलाना को ये नहीं कहते कि आप इल्म हीमिया, सीमिया, कीमिया, रीमिया या आप तो बहुत गहरी बात कर रहे हैं। तो शेख बदीजी कुतुबुल मदार मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म कीमिया हासिल था, रीमिया वगैरह। तो हम ये नहीं तो कहते कि ये उनके बारे में सुना है, उनके पास ऐसा इल्म था। वो तो बड़े दर्जे वालों को हासिल होता है जो आप बात कर रहे हो ना। ये आजकल कहाँ लोग, इनको क्या नसीब होगा जो हराम रोटियां खा रहे हैं, 50,000 रुपए की तकरीरें कर रहे हैं, टखनों नीचे पजामा पहन रहे हैं, इनको क्या इल्म हासिल होगा साहब? इंशाल्लाह मैं अभी मस्जिद में हूँ, जरा नमाज पढ़ लूँ, फिर मैं बाद में बात करूंगा। मुझे थोड़ा सा नमाज पढ़ना बाकी है, वैसे तो पढ़ ली लेकिन थोड़ा सा बाकी। मैं वजू खाने पे बैठ के बात कर रहा था आपसे। अरे हमको तो कुतुब नहीं लिखना, नहीं तो पता चले हमको कुछ लिख के भेजो। नहीं, मैं अभी जामे मस्जिद में ही था, जामे मस्जिद में हूँ मुरादाबाद की। मैंने मुफ्ती फैज साहब के पीछे नमाज पढ़ी है और मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, मगर मैं कसम नहीं खा। इन्होंने पूरा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के शुरुआत में, और फिर बाद में भी हुजूर के सबसे तफसील में कह के दुआ को खत्म किया। हाँ, हमारे इधर बहुत से ऐसे हैं देवबंद वाले जो दुरूद भी नहीं पढ़ते, वो भी मानते हैं कि इनमें बहुत से ऐसे जो नहीं। जैसे एक नदवे से हमारे आया था, उसने नमाज पढ़ाई, नदवे से विकास नगर कॉलोनी नदवा में रहता है, हमारे इलाके का ही है, तो उसने दुरूद ही नहीं पढ़ा, साफ कह दिया कि हदीस में हुक्म ही नहीं है। रखने के पहले 1 मिनट आप सुन लीजिए। हाँ, कि आप लोगों को, आलिमों को, यानी कि शरीयत, तरीकत, मंतिक, फलसफा, अगर ये आपको आता है तो आपकी तकरीरें समझ लीजिए कि आदमी के दिल पर लगेंगी। और अगर आप गोश्त रोटी उड़ा के तकरीर करोगे तो इससे आवाम बिगड़ती है। बहुत अच्छी, बहुत ऊंचे दर्जे की बात की था आपने, बहुत ऊंचे दर्जे की। मेरे तो आज खुशी हुई कि मैंने जाम मस्जिद नमाज पढ़ी मुरादाबाद की, तो यहाँ पर 2 रकत पढ़ के लोग भागे नहीं, वरना भोपाल के इलाके में तो साहब ऐसे भागते हैं, गधे भागते हैं। आधी मस्जिदें देवबंद वालों की खाली हो जाती है। हाँ, ये मानते हैं बरेली वाले पूरी पढ़ते हैं, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन आज मैंने यहाँ के देवबंद वालों को देखा तो जमीन आसमान का फर्क है। भोपाल के मुरादाबाद के देवबंद वालों पूरी नमाज पढ़ के गए साहब, लगभग ज्यादातर लोग सुन्नतें पढ़ के। भोपाल में तो साहब 2 रकत पढ़ के वहाँ के मुफ्ती कोई भी मना नहीं करता। इतने मुर्दार किस्म के लोग हो गए मुफ्ती लोग वहाँ पर कि मना नहीं करते, सोचते निकलने तो यार नहीं पढ़े। या कयामत में इनके हिसाब होगा कि तुम्हारे सामने नजर, तुम्हारी नजरों के सामने आदमी मस्जिदें खाली हो रही, तुम खामोश हो। कैसे आलिम हो? काय के लिए आलिम बने हो? खाली यही बिदत शिरक करने के लिए आलिम बने, तो ये बिदत है, वो शिरक है, और ये नमाजें छोड़ के जा रहे हैं, सुन्नतें, ये इस पर नहीं टोकेंगे भोपाल के लोग। मगर मुरादाबाद में तबीयत खुश हो गई मुफ्ती फैज साहब के पीछे नमाज पढ़ के कि इन्होंने दुरूद शरीफ भी पढ़ा और बाकायदा लोगों ने सुन्नतें पढ़ी। इतनी बड़ी मस्जिद है, 50,000 आदमी नमाज पढ़ सकता है आसपास। इंशाल्लाह फिर बात कर लूंगा साहब, ठीक है? ठीक, लेकिन ये कुतुब नहीं लिखना, नहीं तो आप लिख दें हेडिंग में कुछ उल्टा सीधा। चलो वैसी डाल देंगे, ठीक है? हाँ, कुछ लिखना नहीं, ठीक है? हाँ नहीं गुनाह होगा। नहीं, मुकद्दम नहीं लिखेंगे, वैसे ही तबसरा लिख देंगे, ठीक है? ठीक।
क्या नाम क्या बताया था नाम? नाम क्या करोगे, अपने नाम लिख दो। अच्छा ठीक।